Good morning everyone. How are you all? Salila ma'am is back. So today we are going to learn the further topics of this lesson. Okay. So in previous class we have already completed up to delete key. Okay. So we were studying about more about keyboard and mouse, right? So in keyboards we have studied about keys and their functions, है ना? Numeric keys, special keys और special keys हमने कहाँ तक पढ़ा था? Delete key तक, right? So now we'll move on to the next topic, that is page up and down keys on page number 28. So all of you take out your book, open page number 28 of lesson 5, more about keyboard and mouse. Okay. So the next topic that we are going to study today is page up and down keys. Is that clear everyone? So all of you take out your book. Open page number 28. Okay, is that clear everyone? So, lesson 5. More about the keyboard and mouse. Okay, is that clear everyone? This is our lesson 5, more about the keyboard and mouse. Okay, so the next topic that we are going to learn today is page up and oblique page up or page up or down keys. Okay, page up or down keys. What do you mean by page up or page down? First we'll start with our topic only, if you get to know what is the meaning of page up and page down, you will simply answer the question. Okay. So first of all we'll talk about page up. Okay, page up means ऊपर साइड पेज को मूव करना, राइट? और जैसे कि मैम ने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है ना? और पेज डाउन मीन्स पेज को नीचे मूव करना. सिंपल है ना, सिंपल चीज. कंप्यूटर में कैसे करते हैं दैट आई टेल यू, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेज अप एंड पेज डाउन. पेज अप मीन्स पेज को ऊपर करना, पेज डाउन मीन्स पेज को नीचे करना. Is that clear? Yes. Now, what do you understand by page up and down or page up or page down keys in our keyboard? ठीक है? So, आपको देखो दो buttons shown हैं आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में. Can you see this? These two buttons, page down and page up. Can you see this? Yes. So, see the definition given below. We use these keys to move the page up or down. Simple है. आप जब आपको पेज ऊपर नीचे मूव करना हो, आप सिंपली हाथों से पेज को ऊपर और नीचे कर देते हो, राइट? लेकिन जब कंप्यूटर में कर रहे हो, देयर इज स्पेसिफिक की फॉर दैट, है ना? आपके कीबोर्ड में बटन होता है, ठीक है? सपोज दिस इज योर कीबोर्ड, राइट? तो यहाँ पे बटन्स दिए रहते हैं जहाँ पे लिखा रहता है पेज अप एंड पेज डाउन. दो बटन्स रहते हैं जो अभी मैंने दिखाया. तो उन बटन्स को प्रेस करने से अगर पेज अप को करते हो तो पेज ऊपर साइड मूव करेगा, पेज डाउन को प्रेस करोगे तो पेज नीचे की तरफ मूव करेगा. Is that clear everyone? So this is the simple step that you have to follow when you want to move your page upside or downside. Is that clear everyone? आपको जब भी पेज ऊपर या नीचे करना हो, आपको सिर्फ इतना करना है, आपको जो कीज दी हुई है उसमें से जो भी आपको चाहिए. अगर आपको पेज ऊपर करना है तो आप पेज अप पे क्लिक करोगे, बटन पे क्लिक करोगे, और अगर पेज डाउन करना है तो पेज डाउन बटन पे क्लिक करोगे. Is that clear everyone? Yes, this was very simple. Now we are moving on to the next topic. Okay, so the next topic is shift keys. Okay, what is it? Shift keys. Shift keys. Next topic is shift keys. और शिफ्ट कीज के बारे में लिखा हुआ है. रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट, है ना? और शिफ्ट की का आपको इमेज भी शोन है ना?
ना, और उसकी यूज भी बताया हुआ है एक और की दिखा करके, राइट। सो फर्स्ट विल रीड दिस एंड देन विल फाइंड आउट व्हाट इट इज, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम विल ड्रॉ द की हियर. Your key will look like this in your keyboard. Shift key and then okay, can you see this? What is it? Shift key plus 2 @ equal to @ क्या है इसका मतलब? ऐसा कुछ होता है? हम तो एडिशन करते हैं, बट 2 + 2 = 4, है ना, 3 + 5 = 8, ऐसे एडिशंस करते हैं। अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं किया कि शिफ्ट की को किसी 2 नंबर, किसी भी रैंडम नंबर कीज के साथ हम ऐड करेंगे तो हमें @ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? So we'll see whether it is true or not. Okay, so there are 2 shift keys present on the keyboard. Okay, look into your book everyone, keep your finger where ma'am is reading. There are 2 shift keys present on the keyboard. क्या बोला है? There are 2 shift keys. Okay, अभी तो मैंने ये एक बनाया है, लेकिन आपके कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 2 शिफ्ट कीज होती है, 2. Okay, just like enter keys. enter keys कितनी थी? 2, right? तो वैसे ही शिफ्ट कीज कितनी है कीबोर्ड में? 2. Okay, then both of them have same purpose और दोनों के यूज भी सेम होते हैं। आप चाहे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका कीबोर्ड है, राइट, एक शिफ्ट की यहाँ है और एक शिफ्ट की यहाँ है, तो क्या दोनों के यूज अलग होंगे? नहीं, यहाँ वाले शिफ्ट की को प्रेस करो तो भी वही आएगा, यहाँ वाले शिफ्ट की को प्रेस करो तो भी वही आएगा। यूज दोनों का सेम है, दोनों को प्रेस करने पे होना एक ही चीज है, लेकिन 2 दिए हुए, ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस। देन we use a shift key with other keys for different purposes. अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये सेकंड की बनाई हुई है, ये क्यों बनाई है? क्योंकि शिफ्ट की को हम दूसरे किसी भी की के साथ में एक साथ प्रेस करते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए, है ना। अब सबसे पहला एग्जांपल जो हमें यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ क्या है? शिफ्ट की को जब हमने 2 के साथ प्रेस किया तो हमें @ मिला करके, है ना, तो ये एक अलग प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। For example, to type @ we press a shift key with the number key 2. To get @ we press shift key plus 2, numeric key 2 at the same time to get @ okay, so क्या बोला है? You know that if the caps lock key is on, we get letters in capital form on the screen. Also with the caps lock off, we can get capital letters. Remember that we must press both the shift key and the alphabet key together. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने अभी क्या बताया? शिफ्ट की को हम अलग अलग कीज के साथ जब एक साथ प्रेस करते हैं तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो आपके कीबोर्ड में यहाँ ऊपर न्यूमेरिक की दी रहती है और एक यहाँ पर न्यूमेरिक की दी रहती है, 2 जगह पर न्यूमेरिक कीज होती हैं, ओके। और ये जो न्यूमेरिक कीज दी हुई है, ये सारी कीज के ऊपर एक अलग अलग सिंबल्स बने रहते हैं, है ना। सो सिंबल्स आर लाइक %, परसेंटेज, एस्टेरिस्क, है ना, ये सारे सिंबल्स बने रहते हैं कि नहीं, है ना। तो जब आपको ये सिंबल्स चाहिए होते हैं और आप अगर डायरेक्टली 2 पे प्रेस करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2, है ना, क्या मिलता है? 2, लेकिन आपको @ नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो न्यूमेरिक की है 2, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है कि उसमें @ का भी फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप उसको शिफ्ट की के साथ एक साथ प्रेस करते हो तो आपको @ मिलेगा। सो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट की एंड न्यूमेरिक की 2 at the same time to get @ Similarly for these signs also, okay, and person के साथ, and के साथ, person के साथ, एंड एस्टेरिस्क के साथ, सबके साथ एक एक न्यूमेरिक कीज होती है। तो आपको क्या करना होता है? शिफ्ट की के साथ उस नंबर की को प्रेस करोगे तो नंबर की के ऊपर जो भी साइन दिया हुआ है वो साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। नाउ द सेकंड थिंग दैट मेंशन्ड इन योर बुक इज कि अगर आपको मैंने अभी बताया था कैप्स लॉक की का यूज, कैप्स लॉक की का यूज क्या होता है?
आप जब कैप्स लॉक की प्रेस करते हो आपके सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में आते हैं, राइट। और जब उसको ऑफ कर देते हो यानी कि उसकी लाइट बंद हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि कैप्स लॉक की बंद है, राइट। और अगर कैप्स लॉक की बंद है इट मीन्स आप जो भी अल्फाबेट्स टाइप करोगे सारे किस में आएंगे, स्मॉल लेटर्स में, राइट। So whenever you press a caps lock key, you will get a capital letter, and whenever you put off the caps lock key, you will get small alphabets. Okay? So इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप for capital letters बिना कैप्स लॉक की के ऑन किए हुए? सपोज आपके कीबोर्ड का कैप्स लॉक की खराब हो गया और आपको कैपिटल में टाइप करना है, सो व्हाट विल यू डू? आपके पास तो ऑप्शन नहीं है। अब एक की के लिए आप पूरा कीबोर्ड तो परचेज कर नहीं सकते और उसको भी रिपेयर भी नहीं करवा पा रहे हो, तो क्या करोगे? उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप शिफ्ट की यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, शिफ्ट की को अगर आप किसी ह्यूमन की के साथ में प्रेस करते हो तो उसमें जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है साइन सिंबल्स वो आ जाते हैं। वैसे ही जब आप शिफ्ट की को किसी अल्फाबेट की के साथ प्रेस करते हो तो वो कैपिटल लेटर देता है, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट की के बिना प्रेस करते हो तो वो आपको स्मॉल ए देता है। इज दैट क्लियर? तो जब भी आपके अगर आपको कैप्स लॉक की यूज नहीं करनी है और आपको कैपिटल में टाइप करना है तो आप शिफ्ट की प्लस ए कर दोगे, साथ में एक साथ प्रेस कर दोगे तो आपको कैपिटल लेटर मिल जाएगा। वहीं अगर आप सिंपली टाइप कर रहे हो तो आपके सारे स्मॉल लेटर्स आएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? गुड। सो आज के लिए बस इतना ही। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कर्सर कीज एंड फंक्शन कीज। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? यस। सो नेक्स्ट क्लास में हम कर्सर कीज एंड फंक्शन कीज पढ़ेंगे एंड देन एक्टिविटी करेंगे। ओके। सो अभी तक मैम ने जितने स्पेशल कीज पढ़ाए ये सारे पढ़ के समझ के रिवाइज करके प्रिपेयर होके नेक्स्ट क्लास के लिए बैठना है ना। देन नेक्स्ट क्लास विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, गुड डे एवरीवन।